Assalamu alaikum, my dear students. Welcome in Asadullah Khan English High School and Junior College. Today we are going to discuss about the paper writing skills. You know that in board exam we have to follow one pattern to write the answers. So today the same thing we are going to discuss over here. I am going to tell you, or we are going to discuss a complete question paper that will be as the model question paper you will consider, and we will discuss here what are the different techniques of writing that paper. Okay, so let's get started. So we are having a model question paper in front of you and it is of 70 marks. So these are few general instructions given over here which I am going to discuss with you people. So this question paper consists 31 question that is divided into 4 sections like section A, B, C and D. Now section A will be of objective type. It will be having 2 questions like question number 1 and question number 2. Question number 1 will be based on multiple choice questions. It means 10 multiple choice type of questions will be given to you and each will be carrying 1 marks. Then same question number 2 of the same section A is also a small answer type or very short answer type of question. So here you are having 8 very short answers and every question is compulsory over here. You will be not having any option over here and each question will carries 1 mark. So like that 10 for question number 1 and 8 for question number 2. So like that section A is consisting of 18 marks. Now let's move further. Section B. Now section B is having the 12 questions. Here also we are having a short answer type of question. So it will consist of 3 to 14. Question number 3 to question number 14 we are having section B, and here 12 short answers are given to you people, short questions are given to you people, and you have to attempt any 8 out of it and each will be carrying 2 marks. So like that your section B will be for 16 marks. Now next is section C. In section C we are having question number 15 to question number 26. It means section C will last from question number 15 to question number 26. So like that same again here 12 answers are given to you. You have to give 12 answers and out of that you have to attempt again 8. Okay, and here each question will be carrying 3 marks. तो यहाँ पे आपको सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा. सो लाइक दैट योर सेक्शन सी इज कंसिस्टिंग ऑफ 24 मार्क्स. Then last one is your section D and it's a full length type of question or you can say the long answers. तो यहाँ पे आपको 5 long answers long questions पूछे गए हैं right from question number 27 to question number 31. So out of that 4 marks each यहाँ पे consist करता है and any 3 questions you have to attempt. So out of 5 any 3 questions you will attempt and each will be for 4 marks. So like that you will be having section A, B, C and D. One more instructions I want to give you here. लाइक फिगर्स टू द राइट इंडिकेट. जो भी आप फिगर्स बनाओगे उसको आप फुल इंडिकेट करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. स्टार्ट ईच सेक्शन ऑन न्यू पेज, मतलब कि आपको जो भी सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो एवरी सेक्शन यू हैव टू राइट ऑन न्यू पेज. ऐसा नहीं कि थोड़ी सी जगह बच गई है तो हम लोग उसी पेज पे नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे. नो, एवरी सेक्शन यू हैव टू स्टार्ट विद द न्यू पेज. एंड एक गलती जो हमेशा स्टूडेंट्स करते हैं राइट वाइल राइटिंग द आंसर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यू हैव टू राइट अलॉन्ग विद इट्स अल्फ़ाबेट. एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दी गई है, एग्जाम्पल है ए अल्फ़ाबेट, यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज उसका आंसर अगर ए है तो यू विल राइट ए एंड देन यू विल राइट आंसर. Or if it is B then you will write B in bracket and then write what is the option given or at the place of B, like that. Then evaluation of each MCQ would be done for the first attempt only. ऐसा नहीं कि आपने लिखा और आपको डाउट है तो आपने उसको कट किया और फिर से आप उसको लिखोगे दोबारा से तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. सो फर्स्ट अटैम्प्ट जो होगा उसी को जो है हम लोग वहाँ पे कंसिडर करेंगे और बोर्ड वाले कंसिडर करते हैं. देन नीड एंड लेबल डायग्राम्स यू हैव टू रिक्वायर वेरेवर इज नेसेसरी. इट इज़ नॉट मेंशन एवरी टाइम दैट जस्टिफाई योर आंसर विथ डायग्राम और सपोर्ट द आंसर विथ डायग्राम. जहाँ भी आपको फील होता है कि ये आंसर में इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते वक्त डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. ऑलवेज इट विल नॉट बी इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड बिकॉज वेरेवर इज नेसेसरी यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम बाय योर ओन. ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. So hope you have understood the general instructions provided by the board. Now we will do one thing. हम लोग एक पेपर लेते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर and then we will discuss it. Okay, so here we are having one specimen paper and here we are going to discuss the section A. Few questions I'm going to discuss with you people so that you will get the idea. So here the very first question of section A is select and write the correct answer. So first question is emergency contraceptive are effective if used within 72 hours of dash. So
So here 4 options are given to you people: coitus, ovulation, menstruation and implantation. And you should aware about the answer first कि यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए. So here the answer is coitus. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप जब लिखोगे ब्रैकेट में A एंड देन कोइटस, तो यहाँ पे आपको जो है वो 1 मार्क मिलेगा. Then here the next question is, which of the following hormone is not secreted by human placenta? So here the options are given to you: HCG, estrogen, progesterone, luteinizing hormone. So here the correct answer is luteinizing hormone. So when you will write D into bracket luteinizing hormone, तो you will be getting 1 marks here. So like that आपको जो है वो 10 MCQs के questions इसी तरीके से attempt करने हैं. Students, though it is too small to see clearly, but please I have a request with you people that while watching this video just do the zoom of your screen. तो जब आप zoom करके देखोगे तो आपको सारे options के साथ यहाँ पे answers दिए हुए हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से clearly नज़र आ जाएंगे. On one screen I have to keep 1 page, that is why ये बहुत छोटा छोटा आ गया है, तो प्लीज़ आप इसको zoom करके थोड़ा सा watch करना. The next is the section B. अगेन सेक्शन बी, जैसे मैंने आपको बताया कि इट कंसिस्टिंग ऑफ 12 क्वेश्चन, आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन एंड ईच कैरिंग 2 मार्क्स ईच. सो हियर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन डाइकोगेमी with suitable example. So you know that dichogamy we are having 2 type, that is protandry and protogyny. So like that हमको यहाँ पे पहले dichogamy के बारे में बताना पड़ेगा. Like dichogamy is an outbreeding device in which the anthers and stigma mature at different types in a bisexual flower so as to prevent the self pollination. जब आप इतना लिखोगे तो आपको इसका 1 मार्क्स मिलेगा. देन नेक्स्ट आपको मेंशन करना है पॉइंट, डाइकोगेमी इज ऑफ 2 टाइप्स. उसकी टाइप्स आपको यहाँ पे बतानी है, लाइक प्रोटेंड्री एंड प्रोटोनी. ओके, तो प्रोटेंड्री को आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा. लाइक दिस टाइप द एंड्रूशियम मैच्योर्स बिफोर द गाइनेशियम. एन एग्जांपल यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी डिस्क फ्लोरेट, जैसे कि सनफ्लावर होता है, तो इसका आपको मिलेगा हाफ मार्क्स. देन प्रोटोगाइनी आपको बताना पड़ेगा विद एग्जांपल, लाइक प्रोटोगाइनी इन दिस टाइप गाइनोशियम मैच्योर्स बिफोर द एंड्रूशियम, तो इसलिए इसको जो है वो प्रोटोगाइनी कहा जाता है. 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं. तो जब आप ये एक पॉइंट मेंशन करोगे विद एग्जांपल दैट इज ग्लोरियोसा, तो यहाँ पे आपको जो है वो हाफ मार्क्स मिलेगा. सो लाइक दैट 1 मार्क फॉर डेफिनेशन, हाफ मार्क्स फॉर प्रोटेंड्री इट्स डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, एंड हाफ मार्क्स फॉर प्रोटोगाइनी इट्स डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल. सो लाइक दैट आपको इतना आप जब लिखोगे तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे. Now next question is, label the part A and B in the given diagram and you have to state the functions also. So here one diagram is given to you and A and B part you have to label. तो यहाँ पे A है endosperm and while B is the cotyledon, that is also called as scutellum. So here when you will draw the diagram again and you will write the part A and B, इस तरह से आप जब मेंशन करोगे then you will get 1 mark each. It means 1 mark for your A and 1 mark for your B, and like that 1 mark आपका लेबलिंग पे हो जाएगा and हाफ मार्क्स यहाँ पे आपके दोनों के फंक्शन पे बताने पड़ेंगे. लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉटिलीडॉन. सो यू नो द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म दैट इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट स्टोर फूड एंड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, तो यहाँ आपका हाफ मार्क मिलेगा. देन कॉटिलीडॉन का आपको फंक्शन बताना है, दैट इज द सिंगल कॉटिलीडॉन इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो and it is called as scutellum and it absorb nourishment from the endosperm during germination. तो इस तरीके से आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, यानी कि हाफ मार्क्स आपको लेबलिंग बताने का, 1 मार्क आपको लेबलिंग बताने का A and B एंड हाफ ऑफ मार्क्स उसका दोनों के फंक्शन बताने का. इस तरीके से ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपका रहेगा. सो लाइक दिस ओनली फर्दर क्वेश्चंस, इट मीन्स इंक्लूडिंग दीज 2 और आपको ऐसे 6 मोर क्वेश्चंस वी हैव टू डू, देन योर सेक्शन बी विल गेट कंप्लीट. तो यहाँ पे आपको सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चंस में से एनी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच विल बी कैरिंग 2 मार्क्स. सो लाइक दैट इन अ गिवन मैनर हाउ आई गेव यू, कंप्लीट सोल्यूशन भी यहाँ पे आगे आपको वीडियो में नजर आएगा, तो उसको आप जूम करके या पॉज करके आप पूरा सोल्यूशन भी इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा. ऑल क्वेश्चंस आई हैव प्रोवाइडेड हियर अलॉन्ग विद द आंसर. सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग अपना सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं. नाउ हियर सेक्शन सी, अगेन हियर यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि आपको टोटल सेक्शन सी आपका 24 मार्क्स का मिलेगा एंड इस 24 में से आपको जो है वो एक क्वेश्चन को 3 मार्क के लिए अटेम्प्ट करना है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेक्शन सी. So the first question in section C is, what is triple fusion, where and how does it take place, and you have to name the nuclei involved in triple fusion. Like that we are having difference between perisperm and pericarp and coleoptile and coleorhiza.
and albinism and X-albuminous seed. So like that ये दो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So likewise आपको यहाँ पे ऐसे 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं and each questions you have to write in a point form manner. अभी मैं आपको दिखाऊंगी सैम्पल आंसर्स के कैसे आपको पॉइंट फॉर्म में आंसर्स को मेंटेन करना है एंड ईच मार्क्स यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी हम लोग डिस्कस करेंगे. So the very first question, that is what is the triple fusion and where and how does it take place, and name the nuclei involved in triple fusion. So first you have to mention triple fusion. The triple fusion is the fusion of second haploid male gamete with a haploid secondary nucleus to form a triploid primary endosperm nucleus, that is called as PEN, which develops into triploid endosperm. तो इतना जब आप लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा. Then triple fusion is a type of vegetative fertilization. This is the answer of second question, second half. तो यहाँ पे इसका हाफ मार्क मिलेगा. Then triple fusion take place in the embryo sac of the ovule. At this point consists of half marks. Then the 3 nuclei involved in triple fusion are 2 haploid polar nuclei in the embryo sac and 1 haploid male gamete from the पोलन ट्यूब. सो ये पॉइंट का आपको 1 मार्क मिलेगा. तो इस तरीके से जब आप इसको इस पॉइंट फॉर्म में 3 क्वेश्चंस आपको अलग अलग पूछे गए तो उसी हिसाब से जब आप 3 अलग अलग फॉर्मेट में आंसर करोगे तब आपको यहाँ पे कंप्लीटली 3 मार्क्स मिलेंगे. 1 मार्क एंड देन हाफ ऑफ मार्क का बीच का क्वेश्चन का एंड देन लास्ट क्वेश्चन का 1 मार्क. लाइक दैट दिस क्वेश्चन इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 मार्क्स. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प. सो लाइक दैट आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो और लाइक हियर इट इज गिवन 3 फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन करना है, यानी 3 चीज़ों को एक साथ डिफ्रेंशिएट करना है. सो लाइकवाइज आप A, B एंड C इस तरीके से एक एक पैराग्राफ वाइज लिख कर भी इसका डिफरेंस बिटवीन फॉर्म कर सकते हो. सो लाइक दैट हियर जैसे दिया हुआ यहाँ पे पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प का 1 मार्क के लिए डिफरेंस बिटवीन बताया गया है. देन कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा के लिए 1 मार्क का डिफरेंस बिटवीन बताया गया है एंड सेम फॉर एल्बिनिज्म एंड एल्बमिनस एंड एक्स एल्बमिनस सीड्स के बारे में. सो लाइक दैट आप डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट में या कॉलम ड्रॉ ना करते हुए जब 3 चीज़ों का एक साथ डिफरेंस पूछा जाता है तो इस तरीके से 1 मार्क ईच आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. सो लाइक दैट एवरी एग्जाम्पल एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का यहाँ पे आप जब दोगे तो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे. So likewise you have to attempt all questions, or out of these questions you have to attempt any 8 question. Then we will see one more. Now next question is give the functions of following structures like corpus luteum, endometrium and acrosomes. So here the answers you have to write in point form, means 1 point for each. So first is the corpus luteum. So here you have to give first what is the corpus luteum. So the answer is after the release of secondary oocyte, the Graafian follicle transforms into corpus luteum which secretes progesterone and estrogen. These are the 2 hormones, you are aware about it. So under the influence of these hormones the endometrium becomes vascularized and endometrial glands grow and produce uterine secretions, that is called as corpus luteum. तो इसका आपको 1 मार्क मिलेगा. लाइकवाइज आपको एंडोमेट्रियम एंड एक्रोसोम का भी आपको जो है वो कैसे वो प्रोड्यूस होता है और कैसे उसका सेक्रीशन होता है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज दैट सेक्रीशंस और उसका फंक्शन क्या है वो आपको बेसिक यहाँ पे बताना है. तो इस तरीके से आपको 1-1 मार्क्स इसका मिलेगा एंड लाइकवाइज 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा. तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूएशन में यहाँ पे मैंने आंसर्स दिए हैं ऑफ सेक्शन सी, इंटायर सेक्शन सी का. यहाँ पे आपको ऑल क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे 26 तक जो क्वेश्चंस है उसके पूरे आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. आप इसको जूम करके या बीच में पॉज करके आप सारे आंसर्स यहाँ पे देख सकते हो. सेक्शन सी के जितने भी आंसर्स हैं, ओके, राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 टू द लास्ट इज़ योर 26. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 तक का मैंने पूरा यहाँ पे कोशिश की है आप लोगों को सारे आंसर्स इस मॉडल पेपर के प्रोवाइड करने की. तो आप इसको जूम करके या बीच में पॉज करके आप सारे आंसर्स को टू द पॉइंट विथ मार्किंग स्कीम यहाँ पे जो है वो आप लोगों को दिया गया है कि कौन से पॉइंट के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं. तो लाइकवाइज आप इसको जो है वो अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो एंड ट्राई टू राइट इट 1 मोर टाइम इन योर नोटबुक फॉर योर प्रैक्टिस. तो ये प्रैक्टिस पेपर का आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा. ओके, सो नाउ मूव फर्दर. हम लोग अब जो है वो सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं. So yeah, now it is next your section D, and as I already told you people that section D is of 12 marks. It means here you have to attempt any 3 question out of 5. 5 questions will be provided to you people, and out of these 5 questions आपको 3 कोई questions attempt करने हैं and for that you will be getting 12 marks. So here we are having the first question, that is explain the mechanism of steroid hormone and proteinaceous hormone. The next one is given account of various type of WBC in blood control. So हम लोग इसको जो है वो भी डिस्कस करेंगे ये 2 क्वेश्चंस को. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पॉइंट फॉर्म में इसको यहाँ पे आपको आंसर को लिखना है. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन
is explain the mechanism of steroid hormone and proteinaceous hormone. तो सबसे पहले आपको मैकेनिज्म बताना है स्टीरॉयड हार्मोन का एंड अलॉन्ग विद डायग्राम, आप अपने आंसर को डायग्राम से जो है वो सपोर्ट करोगे. स्टीरॉयड हार्मोन्स आर लिपिड soluble and easily pass through plasma membrane of target cell into the cytoplasm. It should be your first point. And their action is slower but long lasting. तो किस तरीके से वो एक्शन करता है उसको आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में उसको बताना है, मैकेनिज्म बताना है ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. Then in the cytoplasm they bind with a specific receptor proteins to form hormone receptor complex which enters the nucleus. How it is entering, यहाँ पे आपको किस तरीके से यहाँ डायग्राम में सपोर्ट किया गया बताया गया उस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना है. एंड इन द न्यूक्लियस द hormones receptor complex bind to a specific regulatory site of DNA to active specific genes. This should be mentioned. Then the activated genes are transcribed into mRNA which is eventually translated to produced protein और एंजाइम. सो दिस इज योर ए पार्ट का आंसर हो गया, यानी कि मैकेनिज्म हो गया आपका स्टीरॉयड हार्मोन का. देन आपको प्रोटीनेशियस हार्मोन का सेम वे में मैकेनिज्म बताना है विद डायग्राम. So proteinaceous hormones are not lipid soluble. These hormones cannot enter the target cell through plasma membrane. These non-steroid hormones are water soluble and interact with specific receptors located on the surface of these cells. The next point is the hormone receptor complex thus form, release an enzyme adenylate cyclase which produce cyclic AMP from ATP. तो इसको आपको डायग्राम से अपने जो है वो सपोर्ट करना है कि किस तरीके से AMP में कैल्शियम रिलीज होता है और ये इस तरीके से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो यहाँ पे दिए जाते हैं लाइक फॉर ओवेरियन ग्रोथ, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. देन योर नेक्स्ट पॉइंट शुड बी CAMP एक्टिविटीज़. दैट CAMP या AMP पाथवे जो होगा वो एक्टिवेट करता है एंजाइमेटिक एक्शन दैट कॉज बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड द हार्मोन एक्ट एज द फर्स्ट मैसेंजर वाइल AMP इज द सेकंड मैसेंजर. सो इस तरीके से आपको सेकेंडरी मैसेंजर जो यहाँ पे हैं लाइक CA++ एंड GMP एंड IP3 दैट इज आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट. तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट 4 मार्क के लिए इस तरीके से लाइक 6 to 7 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम. सपोर्टिव डायग्राम होना यहाँ पे जो है वो बहुत ज़रूरी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अबाउट द अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ WBCs इन ह्यूमन बीइंग. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर WBCs एंड देन उसके बाद उसके टाइप्स क्या क्या है WBCs के, वो यहाँ पे आपको जो है वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले आप WBC के बारे में बताएंगे लाइक WBC ऑल ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड एंड अमीबॉइड सेल्स. They can move out of capillary walls by process called diapedesis. Then WBCs are classified into two main type as granulocyte and agranulocyte. Then granulocyte के बारे में आपको बताना है that granulocytes are WBC with granular and agranular में granules नहीं होते. They are also called as polymorphonuclear leukocytes as they possess lobulated nuclei in different shapes. तो इस तरीके से आपको जो है वो उसकी डिटेल यहाँ पे बतानी है. इन ऑल पॉइंट्स जो ये डिस्कस किए गए ये पॉइंट्स आपको वहाँ पे बताना है. देन उसके बाद आपको जो है वो मेन पॉइंट पे आना है लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs इन ह्यूमन ब्लड. तो यू नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs आर पीसोफिल, ईसिनोफिल, देन एग्रोनोसाइट्स, देन लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स. ये सारे जो टाइप्स हैं WBC के टाइप्स हैं जो ह्यूमन ब्लड को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपको जो है वो इसको एक एक को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. सो इन सेम मैनर पॉइंट वाइज यू हैव टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस. सो हियर इट इज़ सेक्शन D, फुल लेंथ क्वेश्चंस इसमें होते हैं and every question you have to answer in a very detailed way. So here rest all questions, the answers are here available. You can pause the video or zoom the content and then you will get all the answers. तो यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग स्कीम के साथ यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं कि किस तरीके से पॉइंट वाइज आपको आंसर्स लिखने हैं एंड यही पॉइंट फॉर्मेट आपको मेंटेन करना है while राइटिंग ऑल दी लॉन्ग आंसर्स. आइदर इट इज़ सेक्शन C और सेक्शन D, दोनों सेक्शंस में आप लोगों को इसी तरीके से पॉइंट वाइज में डिटेल आंसर ही लिखने हैं. एक्चुअली ये फुल लेंथ 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर्स इन अ वेरी डिटेल्ड वे. एंड इफ़ अगर यहाँ पे कहीं कोई डायग्राम रिक्वायर्ड है, अगर आपको लगता है कि आपके आंसर को आप सपोर्ट कर सकते हो डायग्राम की मदद से, तो यू कैन गो फॉर इट दैट ऑल्सो. सो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व योर इंटायर पेपर. So I hope this content is helpful for you people. So please go through the entire content one more time. Thank you very much my dear students for watching this. Assalamu alaikum. For further updates of Dr. Asadullah Khan English High School and Junior College, don't forget to press the bell icon.